everyone, good morning. I hope you guys are doing well. So, आज class में we are going to discuss environment. We were doing pollution and we will be discussing air pollution only. It is the last class where we will be discussing air pollution. उसके बाद we will be starting with water pollution. So this is what we were discussing in the last class. We discussed the difference between NaAQS and AQI. We also discussed about the pollutants and what new pollutants are added. So I hope you guys are clear with this. Do not confuse yourself with carbon dioxide, because carbon dioxide is a greenhouse gas, but it is not included either in AQI nor in NaAQS, right? So I hope you have written this. Today we will start with the further topics. Give me a minute. Let me just open the page. And we talked about thermal pollution. Today we will be talking about the regulations related to firecrackers. So दिवाली का टाइम आ जाएगा, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, तो पॉल्यूशन तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है. सो क्या हम लोगों ने रेगुलेशंस ली हैं व्हेन द पॉल्यूशन इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स? सो लेट अस स्टडी दैट. तो फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? आपके पटाखे जो आप छोड़ते हैं, ठीक है, वो फायर क्रैकर्स होते हैं. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू अप्लाई द रेगुलेशंस ऑन द फायर क्रैकर्स to all the states. More about the news is that the Supreme Court has clarified that and this was around 2021 and 2022, that अब ये लोग बैन कर रहे हैं for the use of for chemical substances that are there in firecrackers, and are now this rule is applicable across the country. It is green crackers that would be used, and it is permissible to use the green crackers, right? सो जब भी हम लोग फायर क्रैकर्स की बात करते हैं, सो देयर आर हेजार्डियस एंड टॉक्सिक नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज इन फायर क्रैकर्स. बहुत ज्यादा कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? हेजार्डियस बहुत ज्यादा हेजार्डियस सब्सटेंसेस यहाँ पे यूज होते हैं. एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर. कैसे होते हैं? हेजार्डियस एंड टॉक्सिक होते हैं. सो कैसे कैसे अलग अलग कंपाउंड्स हो सकते हैं? लेट अस राइट दैट. वी हैव एल्यूमिनियम जो फायर क्रैकर्स के अंदर होता है, एंड दिस इज वेरी बैड. इधर बायो एक्यूमुलेशन अगर ये एनिमल्स के अंदर हो जाए, सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक. सो एल्यूमिनियम को अवॉइड करना होता है, अदरवाइज बिकॉज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. देन वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड. और क्या मिलता है हमें फायर क्रैकर्स से? सल्फर डाइऑक्साइड. दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक. एसिड रेन इससे कॉज हो जाती है. क्या होता है? एसिड रेन का मेजर कॉज है. ताजमहल टर्निंग येलो is a major example that you can see. It also affects vegetation as well as water sources. Then we have potassium nitrate. पोटेशियम नाइट्रेट ये टॉक्सिक डस्ट पार्टिकल से मिलता है, एंड इट इज कार्टिजेनिक सल्फर कोल कंपाउंड्स दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम हियर. ठीक है. सो carcinogenic sulfur coal compounds that are created. Toxic dust particles are also created. Okay, I गलत spelling लिख लिया. Okay, sulfur coal compounds create करता है ये. Then we have ammonia and potassium. Ammonia and potassium, they can cause thyroid problems in animals as well as in plants and in in animals and in humans, and it can stunt the growth of the plants. It can go and get itself attached to the water surface and can also cause problems. It can also contaminate the groundwater, right? Then we have copper compounds. Copper compounds also can cause cancer risk. Then lead. Lead can cause problems. So lead dioxide या फिर नाइट्रेट या फिर क्लोराइड, lead dioxide बन जाता है या नाइट्रेट या क्लोराइड बनता है, which also can cause bioaccumulation. So bioaccumulation cause करते हैं.
बायो एक्यूमुलेशन कॉज हो जाता है एंड पॉइजनस गैसेस बन जाती हैं. देन मर्करी, मर्करी इज अ हेवी मेटल जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. मर्करी, ऐसे ही आर्सेनिक, mercury and arsenic and other compounds of barium is also very problematic. ठीक है, सो ये सारे heavy metals के अंदर आते हैं which can also cause problems. Like basically asthma, toxic ashes are produced from here. Lithium compounds also. सो ये सारे कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, सारी गैसेस, ये सारे सब्सटेंसेस हमें फायर क्रैकर्स से मिलते हैं विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. इसलिए ग्रीन क्रैकर्स यूज करने के लिए बोला गया है. देन वी विल स्टडी अबाउट, इफ दिस इज क्लियर टू यू, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड सीडिंग. सो क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग So research have declared the possibility of using cloud seeding to tackle Delhi's air pollution. What exactly is cloud seeding? A weather modification technique to enhance the precipitation by dispersing substances into the air that help to saturate the clouds. So हम क्या करते हैं, हम ऐसे substances secrete करते हैं clouds के अंदर जो saturate कर देते हैं. They saturate the clouds. ये clouds को saturate कर देंगे. जैसे कि तो अगर क्लाउड बहुत ज्यादा पॉइजनस हो चुके हैं, उनको सैचुरेट करते हुए हम लोग अगर कोई सब्सटेंसेस दे दें, वी कॉल देम एज व्हाट? वी कॉल देम एज क्लाउड सीडिंग. क्लाउड सीडिंग. सो केमिकल्स यूज्ड, कौन से हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं? राइट दैट salts such as, ये पेपर में डायरेक्टली आ सकता है, salts such as silver iodide, AgL इसका कंपाउंड होता है. पोटेशियम आयोडाइड, ओके. सोडियम क्लोराइड, और ड्राई आइस, या फिर ड्राई आइस हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड्स में सेक्रेट करते हैं ताकि सैचुरेशन हो जाए. कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड सीडिंग आर, क्लाउड्स नीड टू बी डीप एनफ, क्लाउड्स को बहुत डीप होना नीडेड है, एंड दे शुड बी अ स्टेबल टेम्परेचर. सो एक डायग्राम से समझो, सपोज ये हमारे क्लाउड्स हैं, ठीक है. सो हम उसे क्या यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग सिल्वर आयोडाइड रिलीज करते हैं बाय अ एरोप्लेन. सो सपोज ये एक एरोप्लेन है हमारा, ठीक है. सो ये एरोप्लेन है, हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड रिलीज करते हैं. सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज्ड बाय द प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, या ये ग्राउंड बेस्ड जनरेटर के थ्रू भी, और सो या तो प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं उनसे रिलीज हो सकता है. देन सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स रीच द टारगेटेड क्लाउड्स. किसी तरीके से वो क्या करते हैं, जब हम उसे रिलीज करते हैं तो वो टारगेट क्लाउड्स तक पहुंचता है. कहां तक पहुंचता है? टारगेट क्लाउड्स तक पहुंचता है. देन सिल्वर आयोडाइड फॉर्म आइस क्रिस्टल्स. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं. आइस क्रिस्टल्स, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप होता है, ये थर्ड, कि आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग गए हैं. एंड now too heavy to remain in the air, the ice crystal then of course are going to fall, right? They melt down and they fall in the form of the rain, और अब वो rain की form में
फॉल करते हैं। वाई? बिकॉज वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। सो एसिड रेन होने से पहले ही हम लोग जितने भी टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको ऑलरेडी सैचुरेट कर देते हैं, सैचुरेट करके हैवी कर देते हैं, ताकि वो फॉर्म होके रेन की फॉर्म में, आइस हेल की फॉर्म में किस तरीके से नीचे आ जाए। और हम ये वाले सॉल्ट सारे यूज करते हैं। सॉल्ट्स क्यों यूज कर रहे हैं? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स होते हैं ना, सॉल्ट से हम सैचुरेट कर देते हैं, एसिडिक इन नेचर नहीं रहता है वो बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, अगर हम क्लाउड सीडिंग करेंगे तो हम एयर पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे, राइट? एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इस तरीके से डायनेमिक जितने भी क्लाउड्स थे उनको हम बचा पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव clean air survey that was also announced. Clean air survey 2023 में, जिसे हम बोल सकते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. So it was an initiative that was taken by MO, Ministry of Environment and Forest Reserve also, जो कि किसके अंडर लिया गया? अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अंडर NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. So NCAP launched this very comprehensive initiative, जिसके अंदर हम लोगों ने बोला कि हम अपनी सिटी, अपने रीजन और नेशनल लेवल, बल्कि ये क्या है, ये एक सिटी लेवल पे भी है, ये एक स्टेट लेवल पे भी है और ये नेशनल लेवल पे भी है, ये हर लेवल पे प्लान चलेगा, ठीक है. एंड हम लोग क्या लेंगे, अपनी एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के इनिशिएटिव्स लेंगे. एंड दिस विल क्रिएट व्हाट? इट विल क्रिएट अवेयरनेस. ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा अमंग पीपल. इन्फॉर्म सिटीजन अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट्स. ये क्या बताएगा आपको? हेल्थ इम्पैक्ट बताएगा, जितने भी प्रॉब्लम्स आसपास चल रही हैं उनकी वजह से, जितनी एयर क्वालिटी की कंडीशंस बताएगा. ये डिफरेंट लोकेशंस की एयर क्वालिटी को कंपेयर करेगा. कंपेयर एयर क्वालिटी ऑफ डिफरेंट लोकेशंस, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी एयर क्वालिटी कैसी है, राइट? All 131 cities that are covered under NCAP are required to do self assessment. और यहाँ क्या होगा? 131 cities जो यहाँ पे अपने आप को enroll कर चुकी हैं, उनका क्या होगा? उनको बोला गया है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी करो एंड देखो कि किस तरीके से कहाँ पे आपके अंदर कमी है, राइट? It will provide them the proper portal. एक ऑनलाइन पोर्टल है प्रना, इनका ऑनलाइन पोर्टल है. अब ऐसी चीजें वो पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में. इनका गोल क्या है? क्लीन एयर फॉर ऑल. इनका मोटो और यू कॉल देम एज गोल क्या है? क्लीन एयर फॉर ऑल. सबको कैसा देना है? क्लीन एयर देना है. So ये इनका मोटो है and they have made a protocol for this. ठीक है. Then we have one more thing that is very important. We also have started. ठीक है. So हमने कल we studied about a very important concept. और आज उसके बारे में ही थोड़ा और पढ़ते हैं. दैट इज BS6 फ्यूल रादर देन BS4, है ना. सो वी स्टार्टेड यूजिंग BS6 फ्यूल. इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे. सो भारत स्टैंडर्ड 6 एमिशन नॉर्म्स, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं
कि आजकल हम लोग कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, भारत स्टैंडर्ड 6 फ्यूल यूज कर रहे हैं. So according to United Nations, 9 out of 10 people in India suffer because of the problems, because of the air we breathe, right? So in India, air pollution is killing about 1 lakh people under the age of 5 every year, and it is responsible for a total death of 12.5%. जब सर्वे हुआ तो हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन की वजह से about 12.5% of the children, 12.5% of the whole population dies because of the air pollution, and 1 lakh students, 1 lakh children below the age of 5 also die. According to one of WHO's measure, India has 9 of the world's 10. India is one of the 9 टॉप 10 में से मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज. सो इंडिया में अगर टॉप 10 देखोगे तो 9 जो टॉप कंट्रीज है वो इंडिया में ही है, सिटीज इंडिया में ही है, सॉरी. Over the year, the government has taken various initiatives. For example, we have the National Clean Air Program. Then we have Pradhan Mantri Yojanas, different योजना है, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, and we have the Bharat Standard 6 emission norms. So we'll study about this norm. In 2020 हमने इसे start कर दिया है. So the Union Environment Ministry recently announced that BS4 emission norms इतने ज़्यादा successful नहीं थे. Now we will be using with BS6 norms. BS6 norms करेंगे. In order to comply with these norms, the vehicle manufacturers need to move towards a new technology. और इसकी वजह से हमें क्या चाहिए? We need to move towards new टेक्नोलॉजी. तो अब आपने देखा है हम लोग ई व्हीकल्स यूज कर रहे हैं. ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया है. इनके लिए हमें स्पेशल इंजन्स भी चाहिए, और भी हमें स्पेशल इंजन्स चाहिए होंगे, स्पेशल इंजन्स जब हम लोग भारत स्टैंडर्ड 6 फ्यूल यूज करेंगे. द स्विच टू BS6 फ्यूल्स हैपेंड इन 2022 by looking at the poor conditions. So finally in 2022 we moved towards this new fuel, and this was, ये हर किसी के अंदर आया था, 4-wheeler, 2-wheeler and commercial vehicles के अंदर. At present BS6 fuels were BS4 and 3 fuels were used, but now because of the health hazards हम लोग change कर रहे हैं BS6 में. Health hazards like asthma, bronchitis, heart diseases were caused. So the Hero Motocrop, the world's largest 2-wheeler manufacturer, has become the first 2-wheeler manufacturer in India to receive BS6 certification. So कौन सा था? It was, वैसे वो नहीं पूछेंगे ये information, but it was Hero Motocrop. ये फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जिसने 2-wheeler पे BS6 फ्यूल यूज करना स्टार्ट किया, और इनको सर्टिफिकेट भी मिल गया फॉर द अप्रूवल. सो भारत स्टैंडर्ड क्या है? भारत स्टैंडर्ड एक एमिशन स्टैंडर्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेट किया है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. द एनवायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री is responsible for the fuel that is standardly used in our country. The Central Pollution Control Board implies these standards and it is based on the European standards. अब हम लोग ये यूज ही क्यों कर रहे हैं? इसके एडवांटेजेस ही क्या हैं? सो BS6 फ्यूल्स, द वॉल्यूम ऑफ अगर हम लोग BS6 यूज करेंगे, सो द वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5 वो रिड्यूस करता है. अब हमने देखा किस तरीके से पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हम लोगों को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो अगर हम लोग BS6 फ्यूल यूज करेंगे, सो हमारा PM 2.5 क्या रिड्यूस हो जाएगा? 20 to 40 रह जाएगा. 20 to 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर रह जाएगा. ठीक है, ये फिगर्स याद रख लेना. वेयरएज अगर हम BS4 यूज करते हैं तो वो 120 तक पहुंच जाता था, और अगर हम BS4 यूज करते थे तो वो 120 तक चला जाता था, 120 चला जाता था. दैट इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. ओके, सॉरी,
माइक्रोमीटर लिखना है। ओके, then BS6 fuel will bring down sulfur content by 5 times as compared to BS4। और यहाँ पे एक और चीज क्या होगी, यहाँ पे हमारा सल्फर कंटेंट, अब सल्फर से ही एसिड रेन हो रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो सल्फर कंटेंट जो इसके अंदर था ये 5 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू BS4, 5 टाइम्स, राइट। सो इट वाज 10 ppm जो सल्फर हम लोग देख रहे थे एज अगेंस्ट 50 ppm अगर 4 यूज करोगे, तो मतलब कितना है, हम सिर्फ 10 ppm सल्फर प्रोड्यूस करेंगे, पर अगर हमने भारत स्टैंडर्ड 4 यूज कर लिया तो हम कितना कर रहे थे, 50 कर रहे थे, 50 ppm। तो कितना ज्यादा हमने सल्फर एमिशन भी कम कर दिया है, और सल्फर से ही, सल्फर कंटेंट से ही इतनी ज्यादा इरोजन होती है ऑटोमोबाइल इंजन की भी, इसलिए सल्फर कंटेंट कम करना वाज अ वेरी गुड थिंग। With BS6 fuel, for every 1 kilometer, the car will emit 80% less particulate matter and nearly 70% less nitrogen oxide. So क्या करेंगे, 80% less particulate matter, 70% less nitric oxide। ठीक है, BS6 norms also seek to reduce the harmful hydrocarbons in the emission that are produced due to incomplete combustion of fuel। Last क्या हो रहा है, ये reduce कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या रिड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी काफी हद तक रिलीज हो रहे हैं। सो वी हैव सीन अ शिफ्ट फ्रॉम BS6 to BS4 vehicles। This is the first time that automobile industry is producing so much benefit and इतना ज्यादा हम लोग बूस्टली आगे जा पा रहे हैं। So the shift on the board diagnosis is also mandatory। It is important कि स्पेशल तरीके के इंजन आए अब। Apart from engine calibration, there will be various आफ्टर ट्रीटमेंट एडिशंस सच एज, हम लोग कैटलिक रिडक्शन करेंगे, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स को कम करेंगे, विल चेक अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर लिमिट्स एटसेट्रा, एंड वी विल ऑल्सो यूज ऑक्सीजन सेंसर्स। ऑक्सीजन सेंसर्स भी यूज होंगे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, राइट। द इम्पैक्ट ऑफ द शिफ्ट क्या है, अभी तक हमने देखा है उसका शिफ्ट क्या है, हम पॉल्यूशन कम कर पाएंगे, हम कॉस्ट ज्यादा क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ज्यादा है BS6 फ्यूल्स की, लेकिन अगर आप BS4 से कंपेयर करोगे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ अगर कॉस्ट देखोगे तो BS4 की ही ज्यादा कॉस्ट है। सो कॉस्ट भी हम थोड़ी सी बचा पा रहे हैं। सो यहाँ पे एडवांटेजेस हैं शिफ्ट की, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन द एयर। BS6 इज हेल्पफुल इन एयर पॉल्यूशन। BS6 NOx को रिड्यूस करता है ड्रास्टिकली, ताकि हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ठीक हो जाती हैं। देन BS6 सल्फर कंटेंट कम करेगा, जिसकी वजह से NOx, CO एज वेल एज SO2 भी कम एमिट होगा। ऑयल कंपनीज आर ऑल्सो एट प्रॉफिट और व्हीकल्स भी काफी ज्यादा स्मूथ चल पाएंगे। The Auto Fuel Vision Policy of 2025 in June 2014 had recommended a 75 paisa of addition investment that they will do for clearer fuels। And ये भी है that हमारा Auto Fuel Vision, हम क्या लाए थे, एक ऑटो फ्यूल विजन था हमारा, जो हमें 2025 तक खत्म करना है। उससे ऑटो विजन ये एक तरीके की पॉलिसी है, उसके लिए हमने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा मनी इन्वेस्ट करेंगे। अब हम इतना पैसा अगर बचा लेंगे तो हम उसको वहां पे डाल पाएंगे। लेट अस स्टडी अबाउट ऑटो फ्यूल विजन पॉलिसी ऑल्सो, बिकॉज ये चीजें पेपर में आ जाती हैं। ओके, ऑटो फ्यूल विजन पॉलिसी, अरे
तो ऑटो फ्यूल विजन पॉलिसी सबसे पहले हमने पब्लिश की थी 2014 के अंदर, एंड इट वाज टू अपडेट द 2003 डॉक्यूमेंट जो हम लोग स्ट्रिंजेंट फ्यूल एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स के लिए लेके आए थे. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस. सो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी and Auto Fuel Vision and Policy 2025. So the National Auto Fuel Policy in 2003 mandated that all new four-wheelers in 11 cities meet the Bharat Standard 3. उसके बाद पॉलिसी 2025 में पब्लिश हुई. कब किसके लिए बोला गया, लेकिन कब बोला गया 2014 के अंदर, और ये अपडेट था 2003 डॉक्यूमेंट पे. आई होप ये ओपन हो जाए. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट तो काफी छोटा है, ये यहां से आपको पढ़ना इम्पॉसिबल है, बट इफ यू स्टडी दिस, अगर आपने इसका कंटेंट भी पढ़ लिया ना, हाँ, अगर आपने इसका सिर्फ एक कंटेंट भी देख लिया ना, तो भी आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी. सो ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो फ्यूल पॉलिसी के बारे में बात किया है, देन हमने अप्रोचेस के बारे में बात करी है, यहाँ पे सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. यू कैन रीड दिस डॉक्यूमेंट, इस तरीके से डॉक्यूमेंट रीड कर लो. देन हम लोगों ने BS5 जब बात करी तो हम लोगों ने मोटर स्पिरिट एंड गैसोलीन के बारे में भी बात की थी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देन हम लोग कहाँ आ गए, गैसोलीन एंड डीजल आउटपुट BS3 और BS4. देन यू हैव दिस पेज. देन एथेनॉल ब्लेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पेज नंबर कौन सा है, इट इज 186. सो एथेनॉल ब्लेंडिंग 2024 से पेपर में हर बार ही आ रहा था. एथेनॉल ब्लेंडिंग शायद अब इतना ज्यादा ना पूछे वो, लेकिन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एज वेल एज हाइड्रोजन एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल and ethanol as a transport fuel, these are the three topics that they always asked in the paper. एथेनॉल, पहले मेथनॉल की भी बात हुई थी, बट एथेनॉल ब्लेंडिंग अब ज्यादा पूछा जा रहा है. तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लस हाइड्रोजन, ये दो चीजें हैं जो अभी हम और पढ़ेंगे. एंड हम लोग ई व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप पढ़ोगे एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसे देख लो, फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ते हैं. ठीक है, let me just find out the PDF for ethanol blending that I have created. Okay. अब एथेनॉल क्या है, एथेनॉल एक बायोफ्यूल है. एथेनॉल क्या है, एक बायोफ्यूल है. लेट अस स्टडी अबाउट दैट. तो हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग एथेनॉल ब्लेंड कर देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट आप थोड़ा पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजें. दिस वाज पेज नंबर 185. शुड वी ट्राई टू गो 185 पे? हर कंट्री में, हर सिटी में कैसे ये यूज हो रहा है, उन सब के बारे में ये बात हो रही है. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट PDF है. अह,
ओके अभी हम BS4 पर ही हैं। अरे ठीक है, तो ये PDF पता नहीं शायद हमसे मिस हो गया है। मे बी जब आप डाउनलोड करोगे तो आप ज्यादा ढंग से देख पाओगे। क्या ये, चलो कोई नहीं, हम वैसे ही लिख लेते हैं। सो एथेनॉल ब्लेंडिंग हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, बहुत डीप में नहीं आएगा, सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ उतना याद रखना। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? सो एथेनॉल इज अ बायोफ्यूल। So what is ethanol? Ethanol is one of the principal biofuels which is naturally produced by fermentation of the sugars by using yeasts or via petrochemical processes such as methyl hydration. So bioethanol क्या है? Bioethanol हम लोगों का एथिलाइन ब्लेंडिंग, बेसिकली एथिलाइन हाइड्रेनेशन से हम लोग उसे प्रोड्यूस कर पाते हैं। एथेनॉल होता क्या है? एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल मींस हम उसे बायोफ्यूल मींस हम उसे ऑर्गेनिक तरीके से डेड डिकेइंग क्रॉप से बना पाते हैं। इट्स अ बायोफ्यूल, प्रिंसिपल बायोफ्यूल, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज नेचुरली प्रोड्यूस, इट इज, और जिसको भी मन है वो एक बारी वो PDF रीड कर लेना, इट इज फॉर योर बेनिफिट। इम्पॉसिबल है सारा क्लास में पढ़ाना, बट आई एम गाइडिंग यू कि उसे एक बारी रीड कर लेना। इट इज नेचुरली प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में शुगर होते हैं, बाय यूजिंग यीस्ट। यीस्ट को यूज कर आप अपनी उसको यूज कर क्या कर पाते हो? यीस्ट को यूज कर यूज करके फर्मेंटेशन प्रोसेस से, शुगर से आप क्या कर सकते हो? एथेनॉल बना सकते हो। या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से भी आप उसे क्रिएट कर सकते हो, जब आप एथिलाइन यूज करते हो, एथिलाइन हाइड्रेशन। अब बहुत ज्यादा इसके अंदर डीप जाने की नीड नहीं है, इतना याद रख लेना। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जो कि आप यीस्ट, उसके ऊपर जब यीस्ट लग जाती है उससे करते हो, या फिर आप क्या करते हो? पेट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज करके अपना जो ऑयल बनाते हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बायोफ्यूल कहते हैं। सो हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, EBP, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इट वाज एम टू रिड्यूस कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन द क्रूड ऑयल इंपोर्ट। अभी तक हम क्या करते थे? हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा हमें करना पड़ता था, बाहर की कंट्रीज से मंगवाना पड़ता था। इंडिया में आती थी ये सारी चीजें, उसे इंपोर्ट कहते हैं। क्या मंगवाते थे हम लोग? क्रूड ऑयल मंगवाते थे। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना एथेनॉल यूज करके खुद ही क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम कर दे। ठीक है, क्रूड ऑयल को कम करें। दिस विल कट द कार्बन एमिशन एंड दिस विल बूस्ट द फार्मर्स इनकम ऑल्सो। इससे क्या हो जाएगा? बूस्ट द फार्मर्स इनकम, फार्मर्स की इनकम को बूस्ट कर देंगे। साथ में हम क्या करेंगे? लेस ऑफ कार्बन एमिशन, क्योंकि हमने ये भी प्रॉमिस किया है कि हम 2070 तक अपना जीरो एमिशन टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए ही हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग बायो एथेनॉल या फिर बायोफ्यूल्स यूज करना स्टार्ट करें। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडवांस्ड द टारगेट ऑफ 20% ethanol blending in petrol, also called as E20, from 2025 till when 2030 तक। ठीक है, सो हमने बोला कि हम E20 मतलब हम लोग पेट्रोल के अंदर 20% क्या डालेंगे? एथेनॉल ब्लेंड करेंगे। 2025 से स्टार्ट होके हम लोग 2030 तक इसको अचीव कर लेंगे, 2030 तक अचीव करेंगे। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट? सो हियर बाय एथेनॉल ब्लेंडिंग इनटू गैसोलीन, बाकी तो गैसोलीन है,
बाकी क्या है, गैसोलीन है, हमारा पेट्रोल है, उसके अंदर हम लोग एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे। 20% एथेनॉल, 80% क्या रह जाएगा हमारा, गैसोलीन। दिस विल रिड्यूस द इंपोर्ट कम हो जाएगा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी तक हमारी 85% ऑफ द इनकम तो उससे इंपोर्ट करने में ही लग जाती थी, तो हम लोग कितना सेव कर लेंगे, हमने अभी तक 185 मिलियन टन सेव कर लिया है, ठीक है। सो लेस पॉल्यूशन भी होगा, एंड क्या हो पाएगा, इसकी वजह से फार्मर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दैट इज वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग the ethanol now. So production of the bioethanols requires land. This impacts the cost of ethanols as well as the food crops. The massive quality of water is also needed, and ये सारा करने के बाद भी this is going to benefit a lot of benefit India a lot. But the problem is that अगर हम लोग बहुत ज्यादा इस पे भी डिपेंड कर गए, फूड पे भी, तो भी वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, राइट? इसीलिए ही हमने क्या सोचा है कि rather than making it from food crops, because अगर हम हर बारी फूड क्रॉप्स से ही उसे बनाएंगे तो मे बी हमारी कंट्री के लिए फूड क्रॉप्स कम हो जाएंगी। सो वी हैव डिसाइडेड दैट व्हाई डोंट वी मेक एथेनॉल फ्रॉम वेस्ट। तो हम कैसे बनाएं, एथेनॉल वेस्ट से बनाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट जनरेशंस ऑफ एथेनॉल। क्या है, डिफरेंट जनरेशंस हैं एथेनॉल की, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एथेनॉल की डिफरेंट जनरेशन है। बायोफ्यूल्स पढ़ता है, ये दृष्टि के पेज पर ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऑन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2022 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस सेकेंड जनरेशन दैट इज 2G एथेनॉल प्लांट बेस्ड फ्यूल्स। लेकिन हम लोग काफी आगे तक बढ़ चुके हैं, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, तो इसलिए हम लोग इसे रीड करने का ट्राई करते हैं। So what are biofuels? Any hydrocarbon fuel that is produced from organic matter. ऐसे हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जो ऑर्गेनिक मैटर से हम लोग डेवलप कर देते हैं, लिविंग, जो कि लिविंग मटेरियल है, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डेज या मंथ्स में, उन्हें हम लोग बायोफ्यूल कहते हैं। सो बायोफ्यूल कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म। वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। These can be used to replace or can be used in addition to diesel, petrol और other fossil fuels, transport, stationery, portable भी use कर सकते हैं इसको। They also can be generated by using heat and electricity. So some of the main reasons for shifting to biofuels is because oil का prices बहुत increase हो गए हैं, plus हम लोग pollution भी काफी create कर रहे हैं, right? Greenhouse gases increase हो रही हैं from the fossil fuel combustion. So it is going to benefit a lot of areas, especially the farmers also. So there are different categories of biofuels. बायोफ्यूल डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। जब हमने फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्रिएट किया, सो दीज वर मेड आउट ऑफ फूड सोर्सेज। ये फूड सोर्सेज सच एज शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट से बनाए गए थे। लेकिन हमने देखा अगर हम बहुत ज्यादा शुगर या वेजिटेबल्स यहीं पर ही कंज्यूम कर लेंगे तो हमारे हो सकता है कि फूड जो वर्ल्ड में, जो इंडिया में हम लोग सर्कुलेट करते हैं, वो कम पड़ जाए। तो हमें सेकेंड जनरेशन की नीड पड़ी। द कॉमन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स इंक्लूड बायो एल्कोहल्स, हमने बायो एल्कोहल यूज किया, बायो डीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायो एथर्स, बायोगैस भी प्रोड्यूस करी थ्रू द प्रोसेस दैट वाज इजी, जब हम लोग फूड सोर्सेज से उसे कन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन इससे हमारे फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए प्लस हंगर। सो हमने सेकेंड जनरेशन स्टार्ट किया, दैट वाज अ नॉन फूड क्रॉप बेस्ड। अब हम फूड क्रॉप से नहीं लेंगे, तो हमने क्या किया, हमने नॉन ईडेबल सब्सटेंसेस से लिया, जैसे हस्क, वुड या फिर स्टेम्स या फिर फ्रूट के जो स्किन्स होते हैं, जो पील्स होते हैं, उनसे किया। जैसे कि हमने यहाँ से हमने क्या बनाया, सेल्यूलोस एथेनॉल या फिर बायोडीजल यहाँ से हमने कंज्यूम करना स्टार्ट किया। सो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेसेस वर यूज्ड टू क्रिएट दिस। Also, it is reported that these fuels emit less greenhouse gases as compared to the first generation fuels. फिर हमें लगा कि अब हम सेकेंड जनरेशन भी ट्राई कर सकते हैं कि हम फूड किस तरीके का वेस्ट ही ना करें। तो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गाई यूज करना स्टार्ट करा।
सो दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गाई, जैसे कि ब्यूटेनॉल, कहाँ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्यूटेनॉल. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गाई कैन बी ग्रोन यूजिंग लैंड एंड वाटर अनस्टेबल फॉर फूड प्रोडक्शन, therefore reducing the strain on the dependent of the water sources. क्योंकि पहले में हम बहुत वाटर सोर्सेज भी यूज कर रहे थे, इसीलिए अभी हमने क्या किया, एल्गाई यूज करना स्टार्ट किया. बट वन डिसएडवांटेज इज दैट फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सच क्रॉप्स विल लीड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन. लेकिन जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे ना, फिर उधर से थोड़ा एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन हो सकता है. तो हमें लगा चलो फोर्थ पे जाते हैं. Fourth generation biofuels. In the production of these fuels, the crops that are generally engineered to take in high amounts of carbon are grown and harvested as biomass. तो हम उन्हें कैसे करेंगे, ऐसी crops grow करेंगे जो biomass में convert हो सकती हैं. The crops are then converted into fuel using second generation. Second generation के तरीके से हम उसे convert करते हैं, फिर उसे प्री कंबशन में कैप्चर करके उसका कार्बन हटा देते हैं. सो देन द कार्बन इज जियो सिक्वेटेड. हम कार्बन को क्या करते हैं, उसे कहीं पर जाकर उसे लैंड में या वाटर में जाके सेक्रीट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कार्बन इज और इट इज स्टोर्ड इन ऑयल और गैस फील्ड्स, या गैस फील्ड्स में डाल देते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जियो सिक्वेंशन क्या होता है. ठीक है. एंड सम ऑफ उसके बाद जब कार्बन हट चुका है तो पॉल्यूशन भी लेस होगा, फिर हम उससे बायोफ्यूल्स क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है. तो ये इतने डिफरेंट तरीके के बायोफ्यूल्स हैं हमारे पास. इसे आप रीड कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू. ठीक है. अब एक हमने बायो एथेनॉल का रोड मैप है हमारे पास कि हमें क्या करना है. सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, जो कि नीति आयोग रन करती हैं, उन्होंने बोला है कि 2020 से 2025 में हमारा एक विजन है, एक रोड मैप है. तो क्या है ये, रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया. एंड ये टाइम पीरियड अभी चल रहा है ना, तो पेपर में ये चीजें बारी बारी आ सकती हैं. सो ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो. नीति आयोग गवर्नमेंट इन इंडिया की साइट है ये, वहां पे एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया कंप्रेस्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी. यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो कि एक्सपर्ट कमिटी ने क्रिएट की है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस. उन्होंने बोला है किस तरीके से हम एथेनॉल यूज करेंगे. तो एक रोड मैप दिया है एंड आई विल शो यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम चाहते हैं हम एथेनॉल यूज करके पॉल्यूशन को कम करें. सारे की टर्म्स भी हैं उधर, आपको दिख जाएगा. व्हीकल की टेक्नोलॉजी के बारे में भी है. तो एथेनॉल ब्लेंडिंग काफी बेनिफिट होने वाला है हमारे लिए. सो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 20% ब्लेंडिंग से. उसके बाद research projects were undertaken. You also have the research projects. Then this was asked in the paper also, what is the full form of FFVS? We have started to use flex fuel vehicles. Flex fuel vehicles, ये बहुत important है. This was asked in the paper once in 2020 and 2022, sorry. That flex fuel vehicles क्या होते हैं? So flex fuel engine technology, that is FFE, is a well accepted concept जो ब्राजील में स्टार्ट होता है, representing over 80% of the total amounts of new vehicles that were sold in the country in 2019. The flex fuel vehicles used in Brazil operated with, वो क्या ऑपरेट कर रहे थे, वो E27 और E100 हाइड्रोस एथेनॉल और एनी ब्लेंड बिटवीन दीज टू यूज करना स्टार्ट करते हैं. तो वो ऐसे इंजन्स लाए कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लेंडिंग कर पा रहे थे. कितनी ब्लेंडिंग, हम लोग तो 20 कर पा रहे थे, वो 27 से 100% तक की ब्लेंडिंग कर पा रहे थे. The vehicle technologies for ethanol are already proven to be very compatible with the fuel system that is globally used. The cost of the flex fuel vehicles would be higher. तो cost जितनी भी होगी vehicles की वो high हो जाएगी as compared to the normal vehicles, but it would be using less of petrol and this would be beneficial. So regulatory status क्या है, पहले E5 blending हो रही थी.
पहले क्या था, E5 ब्लेंडिंग थी, दैट इज 5% एथेनॉल एंड 95 गैसोलीन 2015 तक। फिर 2019 के अंदर 10% ब्लेंडिंग हुई। फिर हमने क्या करना यूज किया, हमने 85% फ्यूल ब्लेंडिंग भी देखनी स्टार्ट कर दी उन कंट्रीज में। ठीक है, प्राइस के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। इम्पैक्ट अगर आप देखोगे एनवायरमेंट में, तो किस तरीके से अगर आप E20 की ब्लेंडिंग करते हो तो आप कितना लोअर पॉल्यूशन कर रहे हो। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो 50% लो कर रहे हो, हाइड्रोकार्बन 20% लो हो रहा है टू व्हीलर्स में और फोर व्हीलर्स में। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कितना, बहुत 10% कम कर रहे हो और यहाँ पे सेम रह रहा है। फ्यूल की एफिशिएंसी भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये सबको समझ आया है। इनका एक रोड मैप है, तो इस पीडीएफ को भी आप पढ़ोगे, ये आपका होमवर्क है। आई थिंक यूट्यूब पे आई क्रिएटेड वन वीडियो ऑल्सो अबाउट दिस। ठीक है, ये पूरा इन एक्सेस है, पूरा डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप रीड कर रहे हो। ठीक है, इसको आप होमवर्क ले रहे हो। 2 डॉक्यूमेंट्स आज मैंने आपको बता दिए, आप ऐसे फाइंड आउट करके यू आर गोइंग टू रीड दिस डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल। Okay, let us study about hydrogen fuel. Okay, so Ministry of New and Renewable Energy ने ये बोला है that we should use green hydrogen now. क्या यूज करना चाहिए, हमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबैंडेंटली अवेलेबल सोर्स। एंड अगर हम लोग हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो हम बहुत सारे अपने फ्यूल्स बचा पाएंगे। सो देयर इज दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि 4 जनवरी 2025 में ही अपलोड हुआ है। तो हम लोग पहले हाइड्रोजन एज अ फ्यूल देख लेते हैं, and उसके बाद we'll study about this policy. So let us study about hydrogen. So hydrogen is a very clean fuel that when consumed in a fuel cell produces only water. अगर हम लोग अपने fuel cells के अंदर, जो नई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं आजकल, उसके अंदर और कोई गैस ना प्रोड्यूस करते हुए और कोई सब्सटेंस ना डालते हुए हाइड्रोजन का यूज करें, तो उससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज सच एज नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, बायोमास, as well as renewable power like solar and wind energy. These qualities make it a very attractive option and a fuel that can be used for transportation as well as electricity generation applications. It can be used in cars, in houses, in portable power stations, etc. Hydrogen in its energy carrier thus can be stored, it can be moved, and it can be producing energy also. Today hydrogen as a fuel is used for several methods, and ये बहुत ज़्यादा biological process के through create किया जा सकता है. So there are different types of hydrogen. वो भी read करते हैं. Types of hydrogen. Okay, so on the basis of color spectrum, so what is the color of the gas?
सो हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है. दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन द पेपर एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल, जब हम लोग सारे पढ़ लेंगे तो यू विल रियलाइज दैट इट इज द ग्रीन हाइड्रोजन जो सबसे ज्यादा अच्छा है. सो व्हाई इज द कलर गैस गिवन सो मच इंपॉर्टेंस, वी शुड स्टडी दैट. सो ग्रीन हाइड्रोजन है हमारे पास, ब्लू हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, एंड इवन वी हैव द येलो हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन एंड पिंक हाइड्रोजन. These essentially color codes or nicknames are used within the energy industry to differentiate between the different types of hydrogen. Depending upon the type of production that is used, different colors suggest the different names for hydrogen. There is no universal naming, it is only because of the color. So what is green hydrogen? बहुत important है. I'm telling you again and again, this was asked in the paper. Green hydrogen is made by using clean electricity from sulfur renewable sources such as solar as well as from the surplus renewable energy resources such as solar and wind power. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बल्क में इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लीनर सोर्सेस के साथ, क्लीनर सोर्सेस से क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमें मिल सकती है सोलर और विंड पावर से. ठीक है, टू इलेक्ट्रोलिसिस वाटर, और क्या कर सकते हैं, सोलर, विंड या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके कर सकते हैं इसे प्रोड्यूस. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ क्लीन एनर्जी, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, कुछ हार्मफुल गैस एमिट नहीं करेगा, है ना. तो वो ऐसा प्रोसेस है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो आस्क्ड इन द पेपर. ये चीज हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकता है सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से. ये कैसे रिसोर्सेज हैं, ये सारे क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, दोबारा दोबारा आप प्रोड्यूस कर लोगे इसको. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस यूज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू स्प्लिट द वाटर इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में वाटर को स्प्लिट करता है. वाटर इज H2O, है ना, H2O. तो हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन एमिट होता है जो कि हार्मफुल नहीं है, एमिटिंग 0 कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस. सो इसे हम इसीलिए ही यूज कर रहे हैं. ग्रीन हाइड्रोजन करंटली मेक्स अप अ स्मॉल परसेंट ऑफ द ओवरऑल हाइड्रोजन प्रोड्यूस बिकॉज प्रोडक्शन इज एक्सपेंसिव. लेकिन इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि हम कम ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. Just as energy from the wind power has reduced in price, green hydrogen will come down in price as it becomes more and more common. धीरे धीरे ये कॉमन हो जाएगी. फिर हमारे पास है ब्लू हाइड्रोजन. सो ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम नेचुरल गैस. ये कहां से प्रोड्यूस होता है, नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्टीम फॉर्मिंग. स्टीम फॉर्मिंग which brings together natural gas and heated water in the form of steam. So natural gas और heated water को steam की form में साथ लाओ, इस process को steam reforming कहते हैं. The output is hydrogen, but carbon dioxide is also produced as a byproduct. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है, इसीलिए ही ये इतना अच्छा नहीं है as compared to green hydrogen. So better क्या है, green hydrogen. So the definition of blue hydrogen includes the use of carbon capture and storage. इसीलिए ही हमें CCS ट्रैप करना पड़ता है, कार्बन ट्रैप, कार्बन सीक्वेंसेशन करना पड़ता है. हम CCS सीख चुके हैं इसलिए हमें समझ आ गया है. ये कार्बन को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. The carbon capture and storage is a way to reduce carbon dioxide emission, which could be the key factor in the global warming. We have already studied it. ये 3 steps में होता है, capturing carbon dioxide, production of power generation in electricity, such as hydrogen production, या फिर आप उसे transport करके कहीं पर deep underground कहीं पर bury कर दो, है ना. ये हम already पढ़ चुके हैं. I hope ये सबको clear है, दोबारा नहीं मैं पढ़ाऊंगी ये हम सब देख चुके हैं. तो हम कहाँ थे, ओके ठीक है. तो ये हमने पढ़ लिया है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज समझ आ गया है सबको. सो ब्लू हाइड्रोजन इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज लो कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि हमने CCS करके कार्बन बाहर निकाल लिया है. फिर है ग्रे हाइड्रोजन. करंटली दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस. इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस और मीथेन यूजिंग
steam methane reformation but without capturing the greenhouse gases made in the process. Gray hydrogen is essentially the same as blue hydrogen but without the use of carbon capture and storage. तो कार्बन, वो ग्रे इन कलर कैसे हो गया? क्योंकि उसमें कार्बन है. हम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, क्योंकि वो प्रोसेस में भी बहुत पैसा लग जाता है. CCS में, CCS जिसको नहीं समझ आया है, हमने इतना अच्छे से पहली क्लास में किया है, उसे एक बार प्लीज रीड करो, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं. तो ग्रे हाइड्रोजन और हमारे ब्लू हाइड्रोजन में फर्क ही इतना है कि ब्लू हाइड्रोजन के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी CCS यूज कर लिया है, तो कार्बन हट चुका है, लो कार्बन कंटेंट हाइड्रोजन है. बट यहाँ पे हाइड्रोजन में कार्बन कंटेंट है. ब्लैक एंड ब्राउन क्या होता है अब? सो यूजिंग ब्लैक कोल और लिग्नाइट, जैसे ब्राउन कोल भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन मेकिंग प्रोसेस में उस हाइड्रोजन को हम ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं. just to confuse things, any hydrogen made from fossil fuels through the process of gasification is sometimes called as black and brown hydrogen interchangeably. Right? Japan and Australia announced a new brown coal to hydrogen project very recently. ठीक है. सो कहीं पर भी अगर आप क्या कर रहे हो, कोल यूज करके बना रहे हो, तो विच इज वेरी हार्मफुल. ये तो बहुत हार्मफुल है. पिंक हाइड्रोजन क्या है? पिंक हाइड्रोजन इज जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी. और न्यूक्लियर एनर्जी से जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन. न्यूक्लियर प्रोड्यूस हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज पर्पल हाइड्रोजन और रेड हाइड्रोजन. इन एडिशन टू हाई टेम्परेचर्स फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुड बी यूज्ड in other hydrogen productions by producing steam for more efficient electrolysis or fossil gas based steam मीथेन रिफॉर्मिंग. ठीक है. सो पिंक हाइड्रोजन याद कर लो अगर कभी आ जाए तो न्यूक्लियर पावर यूज कर रहे हो. तो न्यूक्लियर पावर से कंपेयर करो ग्रीन हाइड्रोजन को. ऑफ कोर्स वाटर यूज करना ज्यादा अच्छा है. न्यूक्लियर एनर्जी गलती से अगर रिलीज हो गई तो कितने सारे लोग इंपैक्ट हो जाएंगे. उसके बाद है टर्कोइस हाइड्रोजन. सो दिस इज अ न्यू एंट्री इन द हाइड्रोजन कलर चार्ट. टर्कोइस इज मेड विद द प्रोसेस ऑफ मीथेन पायरोलिसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन. पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस होता है जब आप वेस्ट को जलाते हो. जब आप वेस्ट को क्या कर रहे हैं, हमारे घर से वेस्ट आ रहा है, हम यहाँ से वेस्ट डंपिंग ग्राउंड्स पे डाल रहे हैं, लैंडफिल्स पे डाल रहे हैं. पर उस वेस्ट को लैंडफिल्स पे डालने की बजाय, सैनिटरी लैंडफिल्स पे डालने की बजाय अगर आप उसे जला देते हो, सो बर्निंग ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट में हम इसे पढ़ेंगे. बर्निंग ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? पायरोलिसिस. इसे क्या कहते हैं? पायरोलिसिस कहते हैं. और अगर मीथेन पायरोलिसिस से कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज टर्कोइस हाइड्रोजन. Then yellow hydrogen. Yellow hydrogen is relatively new phase of hydrogen that is made up through electrolysis using सोलर पावर. तो ये नया है. फिर है व्हाइट हाइड्रोजन. व्हाइट हाइड्रोजन जियोलॉजिकल हाइड्रोजन है जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से फ्रैकिंग के थ्रू निकाला जाता है, जो कि इंडिया में तो अभी तक इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है. ठीक है. सो इन सब के आगे सबसे अच्छा हमारे लिए क्या हो गया? ग्रीन हाइड्रोजन हो गया. अब इसके बारे में पढ़ते हैं. सो इंडिया हैज अनाउंस दैट दे हैव अ टारगेट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय 2047. एंड सो हमने बोला था कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंस लाएंगे. एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब हम हर चीज रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे. ओके. सो इंडिया हैज अनाउंस अ टारगेट ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047. बाहर से कहीं हेल्प नहीं लेंगे, खुद की एनर्जी क्रिएट करेंगे. इन इंडिया विल प्रोड्यूस ऑल देयर एनर्जी एंड अ नेट जीरो एमिशन बाय 2070. Green hydrogen is expected to play a very crucial role in these two goals. Green hydrogen is produced through the process of electrolysis, where water is split into hydrogen and oxygen using electricity generated from renewable sources like solar, wind या फिर hydropower. This process results in a clean and emission-free fuel that has immense potential to replace fossil fuel and reduce carbon emission. Another method of producing green hydrogen is from biomass.
which involves gasification of biomass to produce hydrogen. तो क्या करते हो, या तो आप इसे बायोमास से प्रोड्यूस कर लो थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन, या फिर आप क्या कर लो, इलेक्ट्रोलिसिस कर लो. बोथ दीज प्रोडक्शन मेथड्स आर क्लीन एज वेल एज सस्टेनेबल, मेकिंग ग्रीन हाइड्रोजन वेरी अट्रैक्टिव, एंड इट इज ऑल्सो लो कार्बन. तो लो कार्बन फ्यूचर पे ही हमें जाना है, इसीलिए ही ये दोनों प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है. अब एक बारी गैसिफिकेशन भी देख लेते हैं. ठीक है, गैसिफिकेशन, बिकॉज ये भी रिसेंटली पेपर में आया. सो गैसिफिकेशन क्या होता है? गैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक और फ्यूल बेस्ड कार्बोनेशियस मटेरियल एट हाई टेम्परेचर विदाउट कंबशन with a control amount of oxygen and steam into carbon monoxide, and we have hydrogen and carbon dioxide. So इसके बारे में पढ़ते हैं. अब बायोमास गैसिफिकेशन. सो बायोमास गैसिफिकेशन, एंड ये 2023 में ही आया है. बायोमास गैसिफिकेशन इज अ mature technology pathway that uses a controlled process involving heat, steam and oxygen to convert biomass to hydrogen and other products. तो यहां से आप क्या करते हो, हाइड्रोजन एंड अदर प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं. कौन से प्रोडक्ट्स थे ये पेपर में पूछा था, इतना ज्यादा डिटेल में पेपर में आ चुका है. ठीक है, तो ये वो है एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बायोमास क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये सारी चीजें हमारे जो एनवायरनमेंट में है उनको यूज करके हीट, स्टीम एंड ऑक्सीजन यूज करते हो टू कन्वर्ट दिस बायोमास इनटू हाइड्रोजन. यहां से हाइड्रोजन मिल जाता है, एंड अदर प्रोडक्ट्स विदाउट कंबशन नहीं है यहाँ पे, because growing biomass removes carbon dioxide from the atmosphere. जितना ज्यादा आप क्या करोगे, बायोमास ग्रो करोगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड हटा देगा हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में. द नेट कार्बन एमिशंस ऑफ दिस मेथड कैन बी लो, और जो कार्बन एमिट हो रहा है वो काफी कम होता है, स्पेशली इफ कपल्ड विद कार्बन कैप्चर. तो CCCS लगा दे, हम CCS लगा रहे हैं, कार्बन कैप्चर सीक्वेंसेशन हम यूज करते हैं. यूटिलाइजेशन एंड द स्टोरेज इन द लॉन्ग टर्म, उसकी या तो वहीं पर ही हम ड्रिल कर देंगे, उसको अर्थ के अंदर डिग कर देंगे, या कहीं पर यूज कर देंगे उस कार्बन को, या हम क्या करते हैं, हम उसे कहीं पर स्टोर कर लेंगे फ्यूचर यूज के लिए. गैसिफिकेशन प्लांट्स फॉर बायोफ्यूल्स आर बीइंग बिल्ट एंड ऑपरेटेड नाउ. अब बायोमास क्या है, इट इज अ रीन्यूएबल ऑर्गेनिक सोर्स दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स. क्रॉप के रेजिड्यूज, क्रॉप्स भी नहीं, रेजिड्यूज, जैसे कि आप कॉर्न स्ट्रोव, या फिर चाफ होता है, या फिर वीट स्ट्रॉज होती है, उनको यूज करो. फॉरेस्ट रेजिड्यू है आपके पास, या फिर ग्रास है, वेलो ट्रीज है, एक्सेट्रा. ठीक है, ऑल्सो ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी हम इसे यूज करते हैं, एंड एनिमल वेस्ट. अब इतना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तब हम गैसिफिकेशन दोबारा समझ लेंगे. गैसिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो आ रहा है दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर. आप कुछ पील्स डालते हो घर के, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो किचन में यूज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर ही है, उनको भी हम यहाँ यूज करते हैं. यहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन अलॉन्ग विद अदर बाय प्रोडक्ट्स बाय गैसिफिकेशन. सो गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है that converts organic और fossil based carbonaceous material at high temperature. काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको बनाया जाता है, दैट इज मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, विदाउट कंबशन, विद अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टीम, जिधर से हम कन्वर्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, hydrogen as well as carbon dioxide. Carbon monoxide then reacts with water to form carbon dioxide and more hydrogen via water gas shift reaction. So carbon monoxide is a gas that is very harmful, है ना, वो तो एक pollutant है, हम वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं मैम, क्योंकि उसी को ही प्रोड्यूस करके हम बायो प्रोडक्ट्स बना देते हैं, हम उसे एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं कर रहे हैं, है ना. तो उससे हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में डाल के एब्जॉर्प्शंस के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम गैस जैसा. ये आपके पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और इस तरीके से हम क्या यूज कर रहे हैं, अपना हाइड्रोजन कन्वर्ट कर लेते हैं.
ठीक है, ये समझ आ गया होगा। वापस से कहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, so the need of green hydrogen is rapidly increasing due to the potential to decarbonize several sectors like transport, shipping, steam, etc. Green hydrogen can replace traditional fossil fuels in transportation, which contributes significantly to the greenhouse emission. So इतने सारे fossil fuel से मिली हुई एनर्जी को हम लोग कम कर देंगे और हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन यूज कर लेंगे. इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन फॉर अमोनिया, मेथनॉल एज वेल एज स्टील. इन सब इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं. ग्रीन हाइड्रोजन काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए. वो हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हैज न्यूमरस एप्लीकेशंस एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स ऑल्सो, जो कि पावर व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होता है. तो उसके लिए हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्लस हमने एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी निकाला है. The importance of green hydrogen in achieving energy independence cannot be overstated. The production of green hydrogen using renewable energy sources like solar, wind, and hydrogen can produce energy security. Green hydrogen can also be produced locally, reducing the cost. Further, green hydrogen produced using the biomass provides an additional revenue to the farmers also. इससे farmers को भी help होती है. इसलिए हमने टारगेट लिया है जो पेपर में आया था. सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड. इंडिया हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन which with an outlay, हमने एक आउटलाइन बनाई है कि हम 19,744 करोड़ रुपीस इसमें डालेंगे और हम 4 MMT का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे. इससे कंक्लूजन क्या होगा, हमारा कार्बन एमिशन कम हो जाएगा. कार्बोनाइज कर देंगे हम किसी सेक्शन, डीकार्बोनाइज कर देंगे सेवरल सेक्टर्स को, एंड यहाँ से हम काफी एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए सेक्टर्स को भी बूस्ट करेंगे. लो कार्बन फ्यूचर की तरफ हम जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स भी बच जाएंगे. एक और पीडीएफ जो अब आप पढ़ोगे इस मिशन को समझने के लिए, तो ये आपका सेकेंड होमवर्क है. याद रखना, हमने बोला है कि हम 2047 तक इंडिपेंडेंस लेंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंस, एंड नेट जीरो एमिशन 2070 तक करेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें हैं हमारे हाइड्रोजन के बारे में. ग्रीन हाइड्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है. ये इस लाइन से पेपर में आ गया था डायरेक्टली. ये लाइन 5 MMT करना है प्रोड्यूस. दिस वाज समथिंग दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर. दिस वाज योर PYQ जो 2022 में इन्होंने पूछा था हाइड्रोजन के. अच्छा, 23 में पूछा था, पिछले साल. ठीक है, जनवरी में ये आ गया था, पेपर में आ गया, और ये पेपर में 2023 में पेपर में पूछा गया था. ठीक है ना, आई होप दिस इज क्लियर. ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ आई है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. तो वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं अब हम, बिकॉज वी आर डन विद एयर पॉल्यूशन. Okay. So water pollution can be defined as the presence of undesirable substances, organic, inorganic या फिर biological or radioactive in water, such as इनका physical factors, अगर in water, such as physical factors as the heat will make it unfit and harmful for the marine life, for animals as well as for humans. So any undesirable change in the water
आपके अगर वाटर के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल चेंजेस आ गए हैं जो कि अनफिट है, तो वो हमारे लिए क्या है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन. मेराइन वाटर पॉल्यूशन has assured or assumed greater significance because of the presence of the age of technology, age large scale industrialization, etc. Oceans and seas have been endless dustbins for waste also, which is causing a lot of problems. So there are multiple sources of water pollution. बहुत सारे sources है water pollution के, लेकिन उनमें से दो broad categories जो हमें याद रखना है, हम पहले भी कर चुके हैं. पॉइंट सोर्स होता है, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, है ना. पॉइंट सोर्स मतलब हमें पता है कि कहाँ से पानी खराब हो रहा है, कहाँ से वो सोर्स आ रहा है, पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं. और नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं जब हमें नहीं पता कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है. देयर आर डिफरेंट सोर्सेज. अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन के. कहाँ से हमारे पॉल्यूटेंट्स आते हैं. सो जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज. डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा वेस्ट आ रहा है. डोमेस्टिक सीवेज मतलब ह्यूमन बीइंग्स यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग एज वेल एज वॉशिंग द क्लोथ्स. तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जितने भी वेस्ट होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू म्यूनिसिपली ड्रेन होकर वाटर में ऐड हो जाता है. सो देयर इज डोमेस्टिक वेस्ट एंड गार्बेज दैट इज कमिंग एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. देन वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट. उसके बाद क्या आता है, सो दिस इज फर्स्ट. सेकेंड हमारे पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब इंडस्ट्री से इतना ज्यादा वेस्ट हमें मिलता है, जैसे कि कितनी कितनी इंडस्ट्रीज है. वी हैव इंडस्ट्रीज जो कि कंटेन करती हैं टॉक्सिक मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, जिंक, कॉपर, कार्नियम एज वेल एज कैडमियम. सो यहाँ पे नॉन टॉक्सिक मेटल्स लाइक आर्सेनिक या फिर एल्कलाइज, सेलुलोस फाइबर्स, ब्लीचेस एटसेट्रा, या फिर पेट्रोकेमिकल्स, दे आर ऑल्सो डम्प्ड इन द वाटर. तो वो भी वाटर में डंप किए जाते हैं. तो हैवी मेटल्स एंड नॉन हैवी मेटल्स भी पानी में जाते हैं. लेड, मर्करी, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक एटसेट्रा, है ना, ये सब पानी में जा रहे हैं. उसके बाद इंडस्ट्रियल के बाद वी हैव एग्रीकल्चरल वेस्ट. क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है. So the water pollution caused by agriculture is mainly the outcome of various fertilizers, insecticides, pesticides. और ये क्या होता है, ये हम लोग उन्हें डालते हैं अपने फील्ड्स में और वहां से रन ऑफ करके, इसका लिए टर्म क्या यूज होता है, रन ऑफ होके वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं, हमारे लेक्स, हमारे ओशंस, इनके अंदर. जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होता है. यूट्रिफिकेशन हर बारी पेपर में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है. तो यहां से क्या हो रहा है, अगर इंडस्ट्रीज के कुछ सब्सटेंसेस लीच डाउन कर जाते हैं तो साथ में हमारा वाटर टेबल भी खराब हो जाता है. क्या हो जाता है, वाटर बिकम्स अनफिट टू ड्रिंक. सो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकली बहुत सारे वेस्ट आ रहे हैं. देन ऑफ शोर या फिर ऑयल ड्रिलिंग भी होती है. ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग, कहीं पर ऑयल ड्रिलिंग या माइनिंग हो रही है, वहां से भी वेस्ट क्या है, पानी में चला जाता है. दिस पॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफ शोर ड्रिलिंग कहते हैं, जहां से मिनरल ऑयल, लीकेज ऑफ ऑयल कैन कॉज प्रॉब्लम्स. देन वी हैव थर्मल पॉल्यूशन. Thermal pollution can also be there. So thermal pollution, so mostly large scale जितनी भी industries हैं, thermal power plants और nuclear power plants, oil refineries, वो सारे अपने water जो बहुत गरम water होता है उसको क्या कर देते हैं, पानी को अपने जो normal water lakes आसपास है उसमें dump करते हैं, जिसकी वजह से thermal pollution होता है. These industries use large quantities of fresh water for cooling purpose. The hot water is generally discharged in the rivers then.
This increases the temperature of the river water by about 10% and leads to water pollution या फिर thermal water pollution. So thermal water pollution मतलब गर्म पानी हो जाना. So जितने बड़े बड़े smelters होंगे या large scale industry है ना, large scale industries हैं, वो क्या करती है, बड़े बड़े वेसल्स यूज करती है और इनका कूलिंग का प्रोसेस होता है. क्या प्रोसेस होता है? कूलिंग प्रोसेस होता है. फॉर कूलिंग इट डाउन, इनका एक कूलिंग प्रोसेस होता है. तो इनको कूल करके ये क्या करते हैं, इस पानी को रिवर में या फिर वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिग्री इंक्रीज हो जाता है. तो फिशेज और जितने भी मेरीन लाइफ है उनको सिग्निफिकेंटली बहुत प्रॉब्लम होती है. ऐसे ही आप क्या करते हो, ऑयल स्पिल्स की वजह से भी यहाँ पे पॉल्यूशन देखते हो. तो बड़ी बड़ी टैंकर्स या बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रही हैं. अब यहाँ पे क्या है, सपोज ये हमारी वाटर बॉडी है, ये हमारी शिप है, हमारा क्रूज है ब्यूटीफुल सा जो बोट लग रही है अब, ठीक है. इसने क्या किया, ऑयल स्पिल कर दिया. अब क्या होगा, ऑयल बिकॉज उसकी डेंसिटी हैवी है वो यहाँ पे फ्लोट करने लगेगा, जिसकी वजह से पूरे में अगर ऑयल फैल गया तो जो हमारी सन की जो रेज है वो नीचे पेनिट्रेट भी नहीं कर पाएंगी. तो जो नीचे हमारी वाटर बॉडी है, जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, दे विल अल्टीमेटली दे विल बी डेड, दे विल डाई. ठीक है, वो क्या हुआ उनकी, दे विल डाई. तो और प्लस ऑफ कोर्स वाटर की रिक्रिएशनल वैल्यू तो खत्म होती ही है. ठीक है, ये सब समझ आ गया. सो डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें डोमेस्टिक वेस्ट से मिलती हैं. जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट से हम लोग को अगर हम उसे कंज्यूम कर लेंगे तो टाइफाइड, कॉलेरा या जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस मेक इट अनफिट फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑल्सो. एंड पानी हमारा कैसा हो जाता है, सो देयर आर, अगर हम घर के पानी की बात करते हैं डोमेस्टिक के, पेपर में रिसेंटली एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ग्रे वाटर pollution and what is black water pollution. What is gray water pollution and what is black water pollution. तो ग्रे वाटर वो वाटर होता है जो आप फिर भी रीयूज कर लोगे, जैसे गाड़ी धोई थोड़ा पानी बच गया उसे फिर भी यूज कर लो, वो ग्रे वाटर है. लेकिन ऐसा वाटर जो बिल्कुल यूज नहीं हो सकता, जैसे वॉशरूम्स का कोई पानी है, इसे नहीं दोबारा यूज कर सकते हो, उसे आप कहते हो ब्लैक वाटर. तो अगर आप डोमेस्टिकली बात करते हो, अगर आप डोमेस्टिक, सो ये चीजें लिख लेते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट अगर पानी में आ जाए या सीवेज का, तो प्रॉब्लम्स लाइक टाइफाइड होती है, टाइफाइड, कॉलेरा, डाइसेंट्री, जॉन्डिस. ठीक है, और ये पैथोजेंस जो होते हैं पानी में वो उसे क्या करते हैं, फाउल स्मेल भी देते हैं. ऐसे ही अगर इंडस्ट्रियल की बात कर लें, तो अगर लेड ह्यूमन बॉडी में चला गया, अगर लेड ह्यूमन बॉडी में गया तो वो डैमेज करता है किडनी को, ब्रेन को एंड नर्वस सिस्टम को. कंप्लीट नर्वस सिस्टम डैमेज होता है. ठीक है, लेड पॉइजनिंग से. अगर मर्करी पानी में इंक्रीज हो गया तो क्या होती हैं, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस डिजीजेज लाइक मीना माटा. अगर जिंक पानी में चला गया देन वॉमिटिंग्स. कॉपर अगर चला गया तो डिजीनेस, नोजिया, ड्राउजीनेस. क्रोमियम से होता है कैंसर एंड आर्सेनिक कॉजेज लिवर सार्कोसिस, लंग कैंसर, as well as gastrointestinal disorder and
skin problems also. ओके okay? अगर ये लिख लिया है तो एक और चीज पढ़ते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में. सो वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं? वाटर बॉर्न डिजीजेस होता है बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर. यहां से प्रॉब्लम्स लाइक कॉलेरा, प्रॉब्लम्स लाइक कॉलेरा, एम्बियोइक डिसेंट्री, बैलिंकली, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए एक्सेट्रा हो जाता है. ओके अगर वाटर शेड डिजीज हो गई, वाटर शेड या वाटर वॉश्ड, वाटर वॉश्ड, इसे हम कहते हैं लैक ऑफ क्लीन वाटर फॉर वॉशिंग. जब आप पानी से अच्छे से नहीं धो पाते हो चीजें तो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? तो प्रॉब्लम होती है जैसे स्केबीज, टाइफस, या रिलैप्सिंग फीवर होता रहेगा आपको बारी बारी, और या फिर ट्रैचोमा, स्किन अल्सर, कंजक्टिवाइटिस एटसेट्रा. ठीक है, तो वाटर बॉर्न और वाटर शेड में या वाटर वॉश्ड में फर्क होता है. फिर है वाटर बेस्ड डिजीजेस. अगर यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए हैं, दैट डेवलप, मतलब आप उन्हें बोल सकते हो अगर पानी में कुछ पैरासाइट्स हैं तो प्रॉब्लम्स लाइक स्केस्टोमियाटिसिस. दिस टाइम दिस वाज आस्क्ड इन द पेपर. जो पेपर कैंसिल हो गया ना उस पेपर में यही आया था. ड्रैकनक्यूलेसियसिस, पैरागोनमियासिस एंड क्लोनोकार्सियसिस. एंड अगर इंसेक्ट वेक्टर क्रिएट हो गए, जैसे कि मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट नीड वाटर टू ब्रीड, अगर वो जैसे मस्किटोज, तो हमें डिजीजेस हो जाएंगी जैसे मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, या फिर फ्लाई बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं ऑनकियोसिस एटसेट्रा. ठीक है, तो प्लीज इसे लिख लो. तो ये फर्क है वाटर बॉर्न, वाटर वॉश्ड, वाटर बेस्ड और इंसेक्ट वेक्टर डिजीजेस में. इसे तो हम वाटर रिलेटेड भी बोल सकते हैं. और ठीक है, यही पेपर में आया था 2024 के आपके, जो पेपर हुआ था इन अगस्त. फिर पेपर अनफॉर्चुनेटली कैंसिल कर दिया गया. पर पेपर में डायरेक्टली यही आ गया था मैच द फॉलोइंग के लिए. अब ये डिजीजेस बहुत बार आती हैं, इसीलिए आई एम गिविंग यू अ होमवर्क. यू विल टेल मी व्हाट इज द डिजीज कॉज जब आप आर्सेनिक बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो एंड लेड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो. मर्करी की तो मिनामाटा होती है, मैंने बता दिया आपको.
ठीक है, बाकी ये वाला तो आपको बहुत ही जरूरी है लर्न करना। वाटर से रिलेटेड डिजीजेज आती हैं, एयर से रिलेटेड आपके क्या पूछते हैं वो लोग, जो डिफरेंट डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछते हैं, गैसेस के बारे में पूछते हैं। सो विद दिस आई वाइंड अप द क्लास। क्लास तो आज इतनी ही है, ठीक है। बाकी सब ये जो चीजें हैं, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नॉट क्लोज द फाइल अभी यहाँ, मतलब द क्लास फ्रॉम हेयर। आप इसे नोट करोगे। 12, आज हमने ब्रेक भी नहीं लिया, आज में बहुत कुछ करना था बिकॉज, सो आई नो आपने बहुत कुछ नोट नहीं किया है। 26 हो रहे हैं, 30 तक आप इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगी। बट ये बहुत ज़रूरी है, वो जो 3 PDFs दिखाई हैं मैंने आपको, वो भी डाउनलोड कर लो, क्लास दोबारा से देखो। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस क्या होता है, यही पेपर में आता है, यहीं से ही आपको चीज़ें समझ आएंगी। डायरेक्टली अगर ये नहीं आएगा तो समथिंग रिलेटेड टू दिस वुड बी आस्क्ड, राइट? सो प्लीज़ इसे ढंग से समझो एंड पढ़ो। ओके, टिल देन आई वॉन्ट यू टू note this down. Thank you and have a wonderful day.